Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, we are here again to help you in the goals you have set for yourself, either for the school examination, either for the Olympiads, right? तो द थिंग इज कि आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशंस की और ओलंपियाड्स की. सो हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन, राइट? तो हम लोग मोशन का पूरा डीप नॉलेज जो कि हमें चाहिए हमारे डेफिनेटली दोनों केसेस को सॉल्व करने के लिए, लाइक द ओलंपियाड्स एंड द स्कूल, इन दोनों का जो नॉलेज आपको मोशन का चाहिए, सो वी विल बी प्रोवाइडिंग यू हियर. ठीक है, तो आज हम लोग उसी का लेक्चर 4 स्टडी करने वाले हैं एंड दैट इज the uniform and non-uniform motion, right? So today we are going to study uniform and non-uniform motion. Now you can see here this team will be helping you in achieving your goals, whatever your goals you have set for yourself. That would be very much beneficial for you all. So if you want any DPP and study material, you can definitely access them on the Telegram channel. All you have to do is to go on the Telegram app. Then you have to write this code TTB009. If you write TTB009 over there on the search box, then you can access the link for the class 9th Telegram channel and then join it. Then you will be having the DPPs or study material available, right? And the next important thing I wanted to tell you is the important thing for you all. We have brought or prepared some packages for you. So the thing is that whoever is very much serious about the studies or about the targets they have set for themselves or about the knowledge they want to gain, so we have prepared something for you all. Then you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. You have to go on this website. On that website you will be seeing such type of packages over there. This is just an example. This is for class 6, right? So this is just an example and such type of packages are available there. You can go there and you can check out all the packages. You can see all the packages, the features involving the packages. Just like the I can say for an example, you can get the comprehensive study material, which is important because if you don't have an organized and structured study material, then your preparation is going to lack somewhere, right? Next one thing is recorded and live classes. Now why recorded ones? Because whenever you have a doubt about a topic, you can every time you can go back and watch that or re-watch that video, right? So you can definitely will be provided the recorded lectures. Homework submission. Now homework submission is important because some students do not even do their homework, so that would be a lacking step for them. What you have to do is you have to do the homework. You have to submit it through the Google Classrooms, right? And that's why it is very much beneficial for you all, because we will be seeing your homework, that you are doing your homework or not, right? So this is a very much good and important feature for you all. Bi-weekly quizzes is important so that you just know yourself कि आप किस lecture में कितना आपको समझ में आता है and कितना आपको समझ में नहीं आता है. So that would be very much beneficial, right? And the last one is periodic test papers. Now see, why periodic test papers? Because they will give you a taste of the final examination. You can definitely get किस तरीके के questions आते हैं, किस level के questions आते हैं, objective आते हैं, subjective आते हैं. तो आपको ये पता करने के लिए you have to give the periodic test papers, ताकि जब आप final exam दे रहे हों तो उसके पहले ही आप लोग बहुत बार उसका रिहर्सल कर चुके होंगे. So it would be very much beneficial for you all to join the periodic test papers or to give the test papers, right? So these are the features of a specific package. I'm just talking about this package. You can definitely go for the test series too. There is test series available too, right? And what you have to do is to click buy now if you want to buy this package. Then you will be forwarded on the price details page. Now you can see here the cost of this is 9,000. All right, so the cost of is 9,000. What you will be getting if you write here the CY live code. If you write here CY live, then you will be getting a 30% discount. That means you will be getting a 2,700 amount will be deducted from the 9,000, and the price of the package will becomes definitely 6,300. So this much things, all such things are available to you in just 6,300. That's very much beneficial, right? If you really want to have a very high goal and want to achieve that goal.
Now all you have to do is to click buy package, and then you will be forwarded on all the options you can choose from. Now you can see here all these are their options. Definitely you can choose any option if you want to pay. Now the thing is, if you still have any query like what you should choose any package, or why should you choose any package, or what are the features about a specific package, how to test series, join the test series. Now you can definitely have all your query resolved on this number. You just have to dial this number, call on it, and then just tell your query. What is it? What do you want to know about anything? You can definitely get all your queries resolved. Now see, if you really want to join the test series, not such type of packages but just test series, you can definitely write this code over there on the test series, CY Live, and if you write that code on the test series, you will be getting 30% discount on the test series too. So it would be very much beneficial if you join the test series or either the whole package. It would be beneficial for you all. Right, now this was the important thing I wanted to tell you. Now let's just start our chapter. So take out your books and copies, all such things. All right, and promise yourself you will be watching the whole lecture. You will be definitely making the proper notes, and definitely you will be becoming a smart student. And the next thing you should promise to yourself is revision. You should revise it daily. देखो हम लोगों ने अभी सिर्फ स्टार्ट किया है स्टडी करना, राइट? अगर आप अभी से उसको रिवाइज करेंगे, इट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर. ये सिर्फ स्टार्टिंग है तो अभी बल्किंग अप करने की जरूरत नहीं है, राइट? सारे कामों को, सारे चैप्टर को कि जब पूरा चैप्टर हो जाएगा हम तब रिवाइज करेंगे, उसको मत करो ऐसा, राइट? आप लोग अभी से एक एक लेक्चर को ही वापस रिवाइज करते चलो. जो अभी तक पढ़ा है सारे कंसेप्ट दिमाग में क्लियर करते चलो, क्वेश्चंस करते चलो. जो मैं होमवर्क आपको दे रही हूँ वो क्वेश्चंस करते चलो. दे आर वेरी गुड क्वेश्चंस. और वो जो क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, दीज आर वेरी मच फॉर दी सब्जेक्टिव टाइप एंड दी ऑब्जेक्टिव टाइप. तो अगर आपने उन सभी क्वेश्चंस को कर लिया तो आपको पूरे चैप्टर का प्रॉपर, पूरे उस लेक्चर का और पूरे उस टॉपिक का प्रॉपर नॉलेज आपको आ जाएगा, राइट? तो दैट इज़ वेरी मस्ट. क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, और तभी आप स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे. अगर आप सिर्फ बल्किंग अप करेंगे, सारे कामों को इकट्ठा करते चलेंगे, तो इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल, ठीक है? तो आपको डेफिनेटली कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है एग्जाम में. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, स्टार्ट रिवाइजिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, एंड अगर हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचा तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्पीड टू, ठीक है? हम स्पीड और टाइप्स ऑफ स्पीड को हम देखेंगे, नॉट द टाइप ऑफ स्पीड बट ठीक है, हम उनको बोल सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन. आपको यूनिफॉर्म वर्ड से क्या समझ में आता है ना? व्हाट इज यूनिफॉर्म, ठीक है? आप लोग जैसे स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, तो व्हाट डज दैट वर्ड मीन? यूनिफॉर्म का मतलब होता है सब कुछ एक जैसा, राइट? यूनिफॉर्म, सब कुछ एक जैसा. अब तुम लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हो स्कूल के लिए, तो डेफिनेट सी बात है सभी बच्चों का सेम यूनिफॉर्म होता है, राइट? तो दैट इज यूनिफॉर्म. उसको यूनिफॉर्म ही क्यों बोला? क्योंकि सबका एक जैसा है. तो दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट, मतलब ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कुछ ऐसा जो कि एक जैसा हो, राइट? अगर हम उसको मोशन के आगे लगा दें, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम उसको मोशन के आगे यूनिफॉर्म को लगा देते हैं तो दैट मीन्स एक जैसा मोशन, राइट? तो इसका मतलब हम ऐसे मोशन की बात कर रहे हैं जो कि एक जैसा है, ठीक है? जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो कि बार बार एक ही जैसा है, बिल्कुल सेम है. अब इसको हम किस तरीके से बताएंगे? नाउ लेट्स सी. आपको जाना है, लेट्स टॉक अबाउट कि भाई आपको जाना है कहीं पे भी घूमने, जैसे मान लो आपको किसी दूसरे सिटी में जाना है टू मीट योर फ्रेंड, right? Now you are living in this city. Now the name of the city is A. Let's just imagine that there is a city named A, और आपको जाना है B तक, ठीक है? You want to go on the B, मतलब आपको B city तक जाना है, and your friend is in the B city and you want to go there, you want to meet him. Now अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर जब आप A से जाएंगे, है ना? तो you decided कि मैं जाऊंगा, ठीक है? बट अब जाने के लिए व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी चूजिंग अ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? तुमने डिसाइड कर लिया कि इस बार आई विल बी ट्राई माई बेस्ट कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में जाऊं. सो व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी डूइंग व्हाट यू विल बी डूइंग, यू विल बी कवरिंग, लेट्स से
let's say 5 kilometer. Let's say you will be covering 5 kilometer in 1 hour. All right. Again, I have to draw this line. All right, now this is not a straight line. I have to make it again. The important thing why I'm focusing on the straight line, because uniform motion ke andar there has to be a straight line. Whenever we talk about uniform motion, that means we are talking about the motion in a single direction, in a same direction, right? तो we will be talking about the straight line only. ठीक है, आप लोग कभी ये मत सोचे कि आपको सर्कुलर मोशन में या फिर कर्व्ड मोशन, कर्व्ड पाथ पे या फिर सर्कुलर पाथ पे आपको यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा, नहीं मिलेगा. ऑलराइट, सो जब कभी भी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट सेम डायरेक्शन, राइट? तो दैट्स व्हाई आई हैव टू मेक अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द सिटी ए एंड द सिटी बी. नाउ अब आपने क्या किया है, आपने डिसाइड किया है यू विल बी गोइंग थ्रू द यूनिफॉर्म मोशन एंड सी आपने 5 किलोमीटर कवर अप किया है 1 आवर में. नाउ यू हैव कवर्ड अगेन 5 किलोमीटर इन 1 आवर. अगेन यू हैव डन 5 किलोमीटर इन 1 आवर and again you have written 5 kilometer in 1 hour, right? तो अगर आप ये करते हैं, लाइक आप पूरे जर्नी में what you are doing, you are covering 5 kilometer in 1 hour, 5 kilometer in 1 hour, again 5 kilometer in 1 hour and again 5 kilometer in 1 hour. That means you are doing a uniform motion. You are doing a single type of motion for every time. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डेफिनेटली सी हियर, जैसा कि हम लोगों ने बोला कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा मोशन, राइट? तो ये एक जैसा मोशन हमने कैसे किया, बिकॉज वी हैव कवर्ड 5 किलोमीटर इन 1 आवर एंड देन अगेन हमने सेम ही काम किया 5 किलोमीटर इन 1 आवर. अगेन हमने सेम काम किया 5 किलोमीटर इन 1 आवर. अगेन सेम काम किया 5 किलोमीटर 1 आवर. बट ये काम हमने पहली बात तो क्या, एक ही डायरेक्शन में किया, राइट? तो इसका मतलब वी आर गोइंग इन जस्ट अ सिंगल डायरेक्शन. लेट्स से अगर ये ईस्ट में है तो वी आर जस्ट गोइंग इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट रोड, दैट्स इट, राइट? अब आप एक और बात सोचिए कि यहाँ पे हम लोग 1 आवर का इंटरवल ले रहे हैं, सही बात है, बट यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है आप एक जैसा मोशन तो कर रहे हैं, यू आर डूइंग वन टाइप ऑफ मोशन, एक ही जैसा मोशन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो कितना भी छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि आपने 5 किलोमीटर कवर अप किया है 1 आवर में, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2.5 किलोमीटर कवर अप किया है इन दी हाफ आवर. पॉसिबल है, राइट? अगर हम इसको हाफ आवर को और भी छोटा बनाते चलते जाएं और 1 सेकेंड की बात करें तो उसमें आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे आप हर एक सेकंड में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि लेट्स से आपने इसका 1 किलोमीटर की जगह यू स्टार्टेड फ्रॉम होम, ठीक है, लेट्स से दिस इज द P. यू हैव स्टार्टेड होम, यू हैव स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम होम, ठीक है, आप होम से किसी शॉप तक जा रहे हैं and you take just let's say 15 seconds, only 15 seconds to reach there, ठीक है. एक शॉप आपके घर के पास ही थी and you go from home to the shop in just 15 seconds, ठीक है. अब 15 seconds की बात हो रही है, राइट? अगर आप ये बोलेंगे that you covered let's say 1 meter in 5 seconds, again 1 meter in 5 seconds and then again 1 meter in 5 seconds, ठीक है, again 1 meter in 5 seconds. अगर आप ऐसा भी करते हैं तो देखिएगा, ये जब आप बड़ा वाला मोशन कर रहे थे, जब आप लॉन्ग डिस्टेंस का मोशन कर रहे थे, जब आप सिटी ए से सिटी बी में जा रहे थे, सो व्हाट यू विल बी डूइंग, आप क्या कर रहे थे कि भाई आप 5 किलोमीटर चल रहे थे 1 आवर में, ठीक है, अगेन आप 5 किलोमीटर चल रहे थे 1 आवर में, लेकिन जब आपको पास में जाना है तो यू टेक द स्मॉलर टाइम. अभी हमने लिया है इंटरवल 5 सेकंड का, सिर्फ 5 सेकंड के अंदर यू आर कवरिंग 1 मीटर, अगेन 5 सेकंड के अंदर यू आर कवरिंग 1 मीटर, अगेन 5 सेकंड के अंदर यू आर कवरिंग 1 मीटर. तो यहाँ पे टाइम इंटरवल छोटा हो गया ना, यहाँ पे 1 आवर था एंड नेक्स्ट में 5 सेकंड्स है.
यहाँ पे बोला जा रहा है अगर मैं इस 5 सेकेंड का 1 सेकेंड भी कर दूंगी तो भी हम लोग सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। दैट मीन्स सेम ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि हम 1 सेकेंड में जितना करेंगे अगले 1 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में भी उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टाइम इंटरवल्स को छोटा करती जाऊंगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। यूनिफॉर्म मोशन विल बी यूनिफॉर्म मोशन एंड यू विल बी कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट हमको समझने के लिए, राइट। सो दिस इज नाउ सी, यहां पर हम लोगों ने ये समझा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, राइट। दैट मीन्स एक जैसा मोशन कर रहे हैं हम, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में एक स्पेसिफिक डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, अगेन उतने ही टाइम इंटरवल में हम उतना ही डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, अगेन हम सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं, तो दैट इज द यूनिफॉर्म मोशन। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 आवर का टाइम इंटरवल चूज करो या फिर 5 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल चूज करो या फिर 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल चूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। दैट देयर हैज टू बी द यूनिफॉर्म मोशन, दैट मीन्स यू शुड कवर द सेम डिस्टेंस इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट कैन बी द डेफिनेशन? द यूनिफॉर्म मोशन is attained by a body when the uniform motion is attained by a body when the body covers same distance, equal, we should write equal distances, not the same, equal distances in equal intervals of time no matter how small intervals are. That's it. Okay, there has to be a full stop. Now see, we have written the definition of uniform motion and you can see, definitely see that uniform motion को लिखने के लिए हमने 2 बातों का ध्यान रखा है। वो 2 बातें क्या है? आपको जब भी यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन लिखना होगा ना, तो यू हैव टू राइट सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स। अगर आप सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स लिखते हैं तो फिर आपको क्या होगा, हेल्प मिलेगी और आप करेक्ट डेफिनेशन लिख पाएंगे। नाउ व्हाट आर द वर्ड्स? सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर आप सिर्फ ये रख देते हैं ना, तो दैट मीन्स पता चल गया यू आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट। एंड द सेकेंड थिंग, नो मैटर हाउ स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर। ठीक है, हमको ये भी चीज ध्यान में रखनी होगी। दैट मीन्स हम ये बताएंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, all you have to do is you have to cover the same distances, that means the equal distances in equal intervals of time. So that is the uniform motion, एक जैसा motion, when you cover the same distances, the equal distances in equal intervals of time, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल कितना है, छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, चलेगा। ठीक है, सब चलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जब हम लोग टाइम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो हमको किस तरीके का ग्राफ मिलता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं एक ग्राफ
ठीक है, हमने जो सिटी वाला एग्जाम्पल लिया था ना, अगेन हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, वही एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। सो लेट्स डू इट। यही है हमारा ए एंड हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट जाके जा रहे हैं बी पे, ठीक है, एंड देन वी आर राइटिंग द 5 किलोमीटर कवर अप इन दी 1 hour, ठीक है, दैट्स 1 hour. Now again 5 kilometer 1 hour, again 5 kilometer 1 hour, और again 5 kilometer 1 hour. Now let's talk about हमको किस तरीके का ग्राफ मिलेगा when we talk about this type of motion. तो again हम लोग क्या करते हैं, not again, we are doing it for the first time. We are making a graph, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा y एक्सिस है और जो हमारा x एक्सिस है, वी आर प्लॉटिंग हियर टाइम एंड, ठीक है, यहाँ पे हम आवर्स में टाइम प्लॉट कर रहे हैं एंड वी आर प्लॉटिंग डिस्टेंस कवर्ड ऑन दी y एक्सिस, ठीक है, और दैट इज इन किलोमीटर, तो दैट इज इन किलोमीटर. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हम लोग को प्लॉट करना है ये ग्राफ, ठीक है, हम लोग को ये ग्राफ प्लॉट करना है. अब हम क्या करते हैं, पहले तो मेंशन कर देते हैं, ठीक है, वैल्यूज मेंशन कर देते हैं. दिस इज 1 hour 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर. तो हमने ये ग्राफ जो है इस तरीके से ड्रॉ किया है, हम लोगों ने वैसे y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई अब हमें ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं. हाउ टू डू दैट, टेल मी. स्टार्टिंग हुई a से, ठीक है, लेट्स से दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसी वजह से हम इसे इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, राइट. तो हम लोगों ने a से स्टार्ट किया एंड दैट शुड बी 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर है अभी, दिस इज द a, यहाँ पर है अभी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 hour के अंदर हमने 5 किलोमीटर कवर अप किया. दैट मीन्स इफ आई प्लॉट कि भाई 1 hour में कितना कवर अप किया, देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द 5 किलोमीटर. सो दिस शुड बी द पॉइंट आफ्टर 1 hour, दिस शुड बी द पॉइंट फॉर द बॉडी, है ना. चलो नेक्स्ट में देखते हैं, आफ्टर 1 hour उसने फिर से 5 किलोमीटर कवर अप किया. दैट मीन्स इन द नेक्स्ट आवर यानी कि 2 किलोमीटर तक उसने फिर से क्या किया, 5 किलोमीटर कवर अप किया. अब 5 किलोमीटर अगेन एड अप हो जाएगा उसमें, है ना. तो 5 प्लस 5 दैट मीन्स 10. तो यू विल बी गेटिंग हाउ मच, 10. तो हम इससे क्या बोलेंगे, दैट 1 hour के अंदर, इस 1 hour के अंदर दे कवर्ड 5 किलोमीटर, ठीक है. तो हम लोगों ने उसका नेक्स्ट पॉइंट भी प्लॉट कर लिया है, ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन. अगेन 5 किलोमीटर इन 1 hour. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अगेन 1 hour ले रहे हैं, 1 hour एंड देन अगेन 5 किलोमीटर. तो दैट वुड बी 5 किलोमीटर. तो हमारा अब कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 किलोमीटर हो जाएगा, राइट. सो दिस वुड बी दिस पॉइंट. चलो फिर अगेन एक और बार 5 किलोमीटर और 1 hour, राइट. तो हम यहाँ 3 से 4 तक चले गए. सो वी विल बी प्लॉटिंग इट, ठीक है, और 20. सो वी विल बी प्लॉटिंग दिस, ठीक है. सो यू कैन सी हेयर, ध्यान से देखो इसे, तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें क्या यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है. जॉइन दैम फर्स्ट ऑफ ऑल. देखो मेरी लाइन भले ही सीधे ना हो बट तुम लोग सीधा लाइन खींच सकते हो. हाउ टू डू दैट, यूज अ स्केल. जब कभी भी तुम्हें सीधी लाइन खींचनी होगी, यूज अ स्केल. और जब तुम ग्राफ बना रहे होंगे तो स्पेसिफिकली यूज अ स्केल, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग ग्राफ बनाएंगे पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, ताकि अगर गलत हो जाए तो रबर से मिटा के उसको वापस ठीक कर लो, राइट. एंड नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है. आई एम जॉइनिंग दैम एंड यूज अ स्केल. आप लोग स्केल यूज करेंगे, राइट, ज्वाइन करने के लिए. देखो मैंने कितना सीधा लाइन खींचा है. अब देखो यहाँ पे ध्यान से कि हमें क्या मिला, हमें मिला एक स्ट्रेट लाइन. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती है,
अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो करती है तो दैट मीन्स उसका ग्राफ, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड क्यों? थोड़ा सा टेढ़ा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है, देखो ये कुछ एंगल बनाती है ना एक्स एक्सिस से, तो वी कैन से इंक्लाइन टू द एक्स एक्सिस बट इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो दिस शोज द यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेनेवर, जब भी तुम लोग कभी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखो और तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन नजर आए इस तरीके की इंक्लाइन, ठीक है, तो आप डेफिनेटली सीधे सीधे बोल सकते हो दैट यस इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये थी, नंबर 1, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप इक्वल डिस्टेंस कवर अप करते हो। ठीक है, सेकेंड, आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो टाइम इंटरवल्स हैं दे कैन बी स्मॉल, दे कैन बी लार्ज, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। थर्ड, you will always get a straight line whenever you try to plot a body's motion that is in the uniform motion, right? तो that means you will always get a straight line. तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि आपको straight line में ही ड्रॉ करना है। स्केल यूज करो तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी आपकी लाइन। ठीक है, मैंने तो बहुत अच्छे से बना दिया। ऑल राइट, उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वी विल, बताओ, we will get a straight line ठीक है, this shows that the body is in uniform motion। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, व्हाट, keep just a second, let me move on to, देखेंगे ये जो स्ट्रेट लाइन है आप देख पा रहे हैं, दिस स्ट्रेट लाइन इज शोइंग यू, एक्सप्रेसिंग यू दैट it is of the uniform motion. All you have to do is to understand the straight line and the distance covered, that means the same distance in the same interval of time. Now let's talk about the next one, and that is the non-uniform. ठीक है, non-uniform क्या हो गया? इसका मतलब जो हम लोग अब तक कर रहे थे वो नहीं होगा, सिंपल। इसका मतलब सेम डिस्टेंसेस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा, दैट्स इट। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगेन कि भाई आप वापस से क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द ए सिटी से आप लोग जा रहे हैं फ्रॉम द बी सिटी, राइट, आप ए से बी सिटी में जा रहे हैं, एंड व्हाट हैपेंड इज आप ए से बी में जा रहे हैं एंड देन यू गेट कि भाई आपने फर्स्ट आवर में लेट्स से 2 किलोमीटर किया। ठीक है, वो रोड बहुत ही उबड़ खाबड़ थी तो आप ज़्यादा स्पीड नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया, सिर्फ 2 किलोमीटर ही कवर अप किया इन दी 1 सेकेंड। नाउ नेक्स्ट सेकेंड में रोड बहुत अच्छी आई। ठीक है, अब बहुत अच्छी रोड आई तो दैट मीन्स आप फास्ट जा सकते हैं, थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, तो यू कवर्ड 6 किलोमीटर इन दी नेक्स्ट 1 आवर। एंड नाउ लेट्स से कि अगला वाला जो था वो ठीक ठीक रोड था, ठीक है, थोड़े ज़्यादा गड्ढे भी नहीं थे और ज़्यादा अच्छा भी नहीं था। सो यू कैन से कि भाई अगले 5 किलोमीटर में तुमने 5 किलोमीटर ही करा, 1 आवर में 5 किलोमीटर ही कवर अप करा, एंड लेट्स इन द लास्ट वन बहुत अच्छी रोड आई एंड यू जस्ट डू दैट यू अगेन ट्रैवल इन दी लेट्स से 6.5 किलोमीटर यू आपने कवर अप कर लिया इन दी नेक्स्ट 1 सेकेंड। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपको सेम आर है बट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज वेरी मच डिफरेंट, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6.5 किलोमीटर, दैट्स सो रैंडम। तो अगर कोई बॉडी इस तरीके का बिहेवियर शो करे, इस तरीके से मूव करे दैट इट इज कवरिंग द अनइक्वल डिस्टेंसेस इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो वी से दैट दिस इज अ मोशन and this is a non-uniform motion, right? So when we talking about the non-uniform motion, we are going to write that the, let's say a body, ठीक है, we can say that a body is
said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. ठीक है, तो अगर कोई बॉडी ऐसा करती है, ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है एंड इट इज कवरिंग द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आई एम नॉट द कवरिंग, हाउ कैन आई से दैट, नॉट, नहीं भाई, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को ट्रैवल करती है लेकिन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करती है, तो इसका मतलब दैट द बॉडी इज इन द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर हम बात करेंगे कभी भी, तो आप जानते हैं कि जब हम इस तरह की बात करेंगे तो हमको आप खुद ही देख के बता सकते हो कि स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको कर्व मिलेगा, ठीक है, वी कैन से दैट स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, एक पूरा स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा, आपको बहुत ही अलग और बहुत ही गंदा एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है, बिकॉज जब कभी भी हम नॉन यूनिफॉर्म की बातें करते हैं तो इसका मतलब स्पीड का इंक्रीज हो जाना एंड स्पीड का डिक्रीज हो जाना, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लेट्स से कि भाई जैसे आप मान लीजिए ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ट्रेन में क्या होता है, जब वो एक ट्रेन एक स्टेशन पे खड़ी है तो वो रेस्ट पर है, स्पीड उसका 0 है, जब वो चलना शुरू करती है तो वो बहुत धीरे धीरे चलना शुरू करती है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, तुमको पता ही नहीं चलता थोड़ी देर के लिए कि ट्रेन चल भी रही है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे चलना शुरू करती है और उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो बहुत तेजी से अपना स्पीड इंक्रीज कर लेती है। सो दैट इज द ओनली केस दैट कैन बी सेड, दैट इज वन ऑफ द केस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यहाँ पे स्पीड अचानक से इंक्रीज हुई है, ठीक है। दूसरा आप ये बोल सकते हैं, लेट्स से अभी जो ट्रेन है जो बहुत तेज स्पीड में चल रही थी, अब उसको जो स्टेशन है जहाँ पे उसको रुकना है वो आ गया, ठीक है, तो अब क्या होगा, उसको अपना स्पीड कम करना पड़ेगा, स्पीड कम करेगी तो बहुत स्लोली स्पीड कम करेगी, ठीक है, पहले बहुत फास्ट थी, अब धीरे धीरे कम करेगी, करते स्टॉप हो जाएगी। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, यहाँ पर एक तरफ क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, राइट। सो दैट इज द मोशन नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि वहां पे आप जो डिस्टेंस कवर अप कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम वो बहुत ही चेंज है। जब आप स्लोली मूव कर रहे थे तो इसका मतलब आप ज्यादा डिस्टेंस कवर अप करोगे, क्योंकि आप धीरे धीरे मूव कर रहे हो, है ना, एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में आप वी कैन से अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में जो आप धीरे धीरे मूव करोगे तो स्लो ना, कम डिस्टेंस मूव करोगे जब आप इंटरवल की टाइम, एक स्पेसिफिक इंटरवल की बात कर रहे हो। लेकिन जब आपका स्पीड तेज होता है तो अगर आप उसी इंटरवल की बात करोगे तो उसमें ज़्यादा आप डिस्टेंस ट्रैवल कर पाओगे, ठीक है। जैसे आप एक बार तो वॉक करो, अगर आप 1 आवर वॉक करते हो तो आप बहुत ही कम डिस्टेंस कवर अप कर पाओगे। अगर आप बाइसिकल से जाओ और सेम ही आवर में आप उसमें वॉक करने की जगह बाइसिकल यूज़ करो, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होने से क्या होगा, आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पीड का इंक्रीज हो जाना, स्पीड का डिक्रीज हो जाना, और वो कहाँ होता है, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे हम इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक और नाम देते हैं एंड दैट इज नोन एज द एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, और द डेसिलरेटेड मोशन, ठीक है। तो वी कैन से दैट दिस मोशन इज ऑल्सो नोन एज, this motion is also known as accelerated motion। accelerated motion का मतलब क्या हो गया है, that the speed is increasing continuously, ठीक है, टाइम के साथ इंक्रीज कर रही है इसकी स्पीड, ठीक है। और डेसिलरेटेड मोशन, डेसिलरेटेड हम कब बोलेंगे, हम डेसिलरेटेड तब बोलेंगे जब हम बात कर रहे हैं उसके स्पीड डिक्रीज होने की, ठीक है। जैसे ब्रेक लगा जाते हैं, लेट्स से यू आर गोइंग थ्रू अ कार एंड आपके जो भी कार चला रहा था उसने ब्रेक लगाया,
राइट जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारी जो स्पीड थी काफी अच्छी स्पीड होगी, कार में तो काफी अच्छी स्पीड होती है, उससे पूरा जीरो तक आ जाना, तो दैट इज नोन एज द डेसिलरेटेड मोशन। है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन बट इट इज अ डेसिलरेटेड बिकॉज द स्पीड इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि आपको क्या करना होता है, जीरो से कुछ स्पीड तक लेके जाना होता है, लाइक यू वांट टू इंक्रीज योर स्पीड, ठीक है, तो एंड एट दैट टाइम वी विल बी सेइंग इट दैट एक्सेलरेटेड मोशन, दैट स्पीड इज इंक्रीजिंग। सो वी कैन से अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ डेसिलरेटेड एंड अ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। सो वी कैन से दिस, ठीक है। अब आपको डेफिनेटली ये बात पता होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जब हमको डेसिलरेटेड मोशन मिलता है या फिर एक्सेलरेटेड मोशन मिलता है तब कैसा ग्राफ मिलता है। मैं आपको एक कर्व बताती हूँ, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको रिमेंबर कर सकते हैं व्हाट इट इज हैपनिंग, यू कैन डेफिनेटली सी दैट, ठीक है। ये जो कर्व है दिस इज द कर्व ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यहाँ पर है टाइम और यहाँ पर है डिस्टेंस, ठीक है। जब हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा तो आप खुद से सोच सकते हैं, जब हम यहाँ तक की बात करें तो सी कितना कम यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है, यू कैन सी हियर। लेट्स टॉक अबाउट दिस, टाइम तो इतना सारा बढ़ गया है ना, टाइम तो इतना ज्यादा कवर हो गया है स्पेंड, बट डिस्टेंस तो सिर्फ इतना ही कवर अप हुआ। सो देखेंगे ज्यादा टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर अप हो रहा है, स्लो स्पीड है ना, ज्यादा टाइम इंटरवल में कम अगर डिस्टेंस कवर अप होता है, स्लो स्पीड। नाउ अगर हम यहां से यहां तक की बात करते हैं, अगेन द सेम वन, ठीक है, सेम टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो यू कैन सी हियर कि अगर मैं इस तरीके से देखूं सो इट इज मच ग्रेटर देन द लेस। जैसे ये फर्स्ट है तो ये जो सेकेंड वाला है ये फर्स्ट से ज्यादा है, हल्का से ज्यादा है, तो दैट मीन्स स्पीड इज इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्लोली। अगेन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मच सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल, तो आप देखेंगे दैट दिस इज टू मच इंक्रीज, ये तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना, ये थर्ड वन में कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो दिस इज द थिंग, दिस इज शोइंग यू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इन द सेम टाइम इंटरवल्स। सेम टाइम इंटरवल्स में अगर डिस्टेंसेस इंक्रीज होते हैं दैट मीन्स स्पीड इंक्रीज हो रही है, और स्पीड इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स इट इज शोइंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज अ कर्व। whenever you get a curve is showing the non uniform motion. So this is the graph of an accelerated motion, ठीक है, जब कभी भी acceleration increase हो रहा होता है, right? So this is the thing we can say about a non uniform motion. Non uniform motion means या तो speed increase हो रही है या speed decrease हो रही है, right? And the thing is या तो distance increase हो रहे हैं या तो distance decrease हो रहे हैं। अब आप बात करोगे कि अगर स्पीड ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ऐसा अगर हो जाता है तो हमें कुछ अलग ही ग्राफ मिलेगा, ठीक है, वह तो डेफिनेटली प्लॉट करके हम पता कर सकते हैं हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, राइट। सो द थिंग बिहाइंड दिस, व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू, दैट यू विल ऑलवेज गेट अ कर्व लाइन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो वी विल बी राइटिंग दिस दैट वी विल गेट अ कर्व लाइन we will get a curve, let's say, not curved line, we should write it only curve, when the body is in non-uniform motion. Alright, तो जब कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तब क्या हो रहा होता है, हमेशा हमको मिल रहा होता है एक चेंज होता हुआ डिस्टेंस लेकिन सेम टाइम इंटरवल। ऑलराइट, यू विल बी गेटिंग अ चेंज होता हुआ डिस्टेंस बट यू विल बी गेटिंग द सेम टाइम इंटरवल, राइट। तो नाउ लेट्स टॉक कि भाई जब कभी भी हम सिंपली बोलेंगे दैट द यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन बिटवीन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मैं स्ट्रेट लाइन बोल रही हूँ लेकिन ये ध्यान रखेंगे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पर हम चेंज होने का मतलब नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्शन का हम कोई रोल नहीं बोलेंगे। वाई नॉट द रोल, बिकॉज क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, राइट, दैट्स वाई। नाउ जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, लेट्स टॉक अबाउट कि भाई मैं आपको दो एग्जाम्पल्स देती हूँ। नंबर वन एग्जाम्पल, ठीक है, जब कोई भी बॉडी ड्रॉप होती है,
ठीक है, लेट्स से कोई भी बॉडी नीचे गिर रही है, आप छत पे गए, आपने छत से बॉल फेंक दी, वो सीधे 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 नीचे जा रही है, वो सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, लेकिन हर एक टाइम पर उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है। जब आपने उसे हाथ में पकड़ के रखा था तो उसका जो स्पीड था वो टोटली जीरो था, लेकिन जैसे ही वो नीचे जाती 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 ज़मीन से बस टच होने ही वाली होती है, उसके ऊपर जस्ट उस पॉइंट पर जब वो टच होने वाली होती है उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जीरो स्पीड से कुछ ज़्यादा स्पीड होना, इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन स्पीड। अब इंक्रीज हो रही है अगर उसकी स्पीड, दैट मीन्स वहाँ पर एक्सेलरेशन है। एंड वी डू नो कि हमारी जो धरती माता है वो क्या करती हैं, एक एक्सेलरेशन लगाती है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी वजह से हर एक गिरती हुई बॉडी का स्पीड कंटिन्यूसली इंक्रीज होता है विद टाइम। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल में होती है, सो वी कैन डेफिनेटली से दैट द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, वाई फ्रीली फॉलिंग, फ्रीली फॉलिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी काम कर रही है, उसके अलावा उसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई मोशन होता है तब हम बोलते हैं दैट द बॉडी इज इन फ्री फॉल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, द फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑलवेज इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जब कभी भी कोई बॉडी अगर गिरती है, ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगी, बिकॉज स्टार्टिंग में तो जीरो वेलोसिटी, जीरो स्पीड, बट धीरे धीरे नीचे जाते जाते उसका स्पीड भी इंक्रीज होने लगता है, ठीक है, और वो फिर कुछ अच्छा वैल्यू हो जाता है, ज़्यादा स्पीड हो जाता है, राइट। तो ये दिस इज द एग्जाम्पल। यहाँ पर हम सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो, नाउ सी लेट्स से कि आप एक सर्कुलर पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं। अब आप सर्कुलर पार्क में जॉगिंग कर रहे हैं और जॉगिंग करने में हम बोल सकते हैं कि हम यूनिफॉर्म मोशन दिखा सकते हैं, राइट। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि क्या, कि आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, और ऐसा करते करते आप पूरे सर्कुलर पार्क के चारों तरफ उसका जो सर्कमफेरेंस है उस पर क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज एवरी टाइम योर डायरेक्शन इज चेंजिंग। जब कभी भी हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ में देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ देखेंगे तो आपका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ देखेंगे तो आपका डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ देखेंगे तो आपका डायरेक्शन इस तरफ है। तो जब आप इस तरीके से मूव करते हो तो आप हर एक पॉइंट पे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हो। दैट्स वाई अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तब भी आपको एक सर्कुलर मोशन पर, सर्कुलर पाथ पे आपको नहीं बोला जाएगा कि आप एक यूनिफॉर्म मोशन में हो, आपको बोला जाएगा कि आप एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। क्यों? क्योंकि आप हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो। इसीलिए जब आप यूनिफॉर्म मोशन की बात करो, ऑलवेज थिंक अबाउट अ सेम पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। आपको स्ट्रेट लाइन में जाना है, आपको सेम डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, तभी हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, भले ही हम फिर सेम इंटरवल में टाइम मतलब सेम इंटरवल में हम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो और हम हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, तो ये कॉम्बिनेशन विल गिव यू अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो वी विल बी सेइंग हियर दैट अ बॉडी covering same equal distances, we should always talk about the equal distances in equal interval of time on a circular path, then the body is in non-uniform motion.
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको रीजन आउट करना है दैट वाई दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन, आप तो बोलोगे कि अगर आप फर्स्ट का एग्जांपल लेते हो, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेते हो, तो आप तो बोलोगे कि बिल्कुल हम स्ट्रेट लाइन में जा रही है, बॉडी गिर रही है तो बिल्कुल सीधा गिर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगी क्या, कि वो हर एक टाइम इंटरवल में, हर एक स्मॉल टाइम इंटरवल में वो डिफरेंट डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रही है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि भाई जब कोई भी बॉडी मूव कर रही है वो सेम इंटरवल में सेम डिस्टेंस मूव कर रही है सेम टाइम ऑफ इंटरवल में, तो फिर यहाँ पे आप क्यों बोलेंगे कि यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। तब मैं आपको क्वेश्चन दूंगी दैट इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एवरी सिंगल मोमेंट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ यूनिफॉर्म मोशन, इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला आज के लिए कि भाई जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। आप ये फटाफट लिख लीजिए, ठीक है। So now you know the difference between the uniform motion and the non-uniform motion, and I hope everything is clear to you. You should every time think about that whenever there is a same direction, right, and the body is covering the same distances in the same interval of time, then it is the uniform motion. And if it's not doing like that, if it's changing its direction, then it is a non-uniform motion, right? So it would be good अगर आप क्या करेंगे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को बिल्कुल अच्छे से डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो दैट वाज इट इन द टुडेज लेक्चर। आज में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम स्पीड की बात करेंगे, वी विल बी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स, राइट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स अबाउट द कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल। और आज आपका क्या होमवर्क है, आज आपका होमवर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप पुराना रिवाइज करो, पुराने क्वेश्चंस करो, होमवर्क सबमिट करो पुराना, ठीक है। आज आपका कोई होमवर्क नहीं है, एंड डू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it to everyone, right? And definitely share it to everyone, not to subscribe to everyone. So we can say share it to everyone. जितने भी friends हैं आपके उन सबको भेजो, उन सबको बोलो that you can study here for free, right? So that would be very much beneficial for everyone. Thank you so much.